अब कैसे बच्चों की लर्निंग आउटपुट ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। One more point. मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में बताया गया था और मॉर्निंग मीटिंग इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों का कक्षा प्रारंभ होने से उस दिन की पूरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका पॉजिटिव मूड सेट करता है और उस मॉर्निंग मीटिंग्स के दौरान बच्चे जो हमारे RISC है उससे संबंधित भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समय का पालन करना, ये सारी वैल्यूज भी बच्चे सीखते हैं। Whole school. आज ही करेंगे। So we'll start with assembly, go on to classroom norms and routine, and then positive behavior management, right? तो ये एजेंडा बाहर भी लगा देंगे हम। नियम सभी को याद है? सभी को याद है? राइट? थर्ड नियम के हिसाब से हमें कैसा कंडक्ट करना है? हाँ, मिट नहीं जैसा पीछे में किया मैंने। क्रिटिकली देखेंगे अपनी धारणाओं को, जैसे हमने कल देखा, काफी लोगों ने बात की असेंबली को किस तरह रीइमेजिन किया जा सकता है, हो सकता है हम कुछ नया कर सकते हैं, उसी तरह आज भी वही करेंगे क्लास के अंदर। तो एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम। विल सी द वीडियो और देन वी डीब्रीफ इट। Leadership and making a movement, and let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your... बैठना क्या विधि का? हाँ जी। पहले एक व्यक्ति डांस कर रहा था, फिर दूसरा करने लगा, तीसरा करने लगा, फिर चौथा करने, इस तरह से समूह बन गया एक काम करने का। पहले शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे सब करने लगे उस काम। थैंक यू सो मच सर। तो वीडियो में एक व्यक्ति अकेला डांस किया और धीरे धीरे लोग उनको ज्वाइन करते गए। नाउ फिर ये लीडरशिप से कैसे रिलेटेड है वीडियो? दुबे सर आपका हो गया, तो चौहान सर, PS चौहान। तो वो एक ही इंस्पायर होते जाएंगे। यदि हमारी कोई आते हैं तो साथ बढ़ता जाता है, लोग साथ देते हैं और कार्य बढ़ता जाता है और हम उस कार्य के प्रति सफल हो जाते हैं अंततः। ओके सर, इसमें कौन था जो करना चाहता था? जो फर्स्ट जिसने स्टेप लिया पहले फर्स्ट जो स्टेप था वो कुछ करना चाहता था। He wanted to start maybe a dancing movement और उन्होंने दिल से किया शायद, तो कारवा बढ़ता गया। तो मुझे शेर याद आ गया, वो मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। ओके, और जैसे एनी अदर रिस्पॉन्सेस लीडरशिप से कैसे रिलेटेड है वीडियो? आई टेक अ फ्यू हैंड रेजेस।
पीछे क्या हो रहा है? Any responses here? डांस कर रहा था, बाद में उससे अच्छे डांस करने वाले आने लगे। ओके ग्रेट, पहले वो डांस कर रहा था, बाद में उससे अच्छे डांस करने वाले आने लगे। ओके इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो लीडरशिप से रिलेटेड है ये? बिल्कुल। हाँ जी, यू वांट टू एलैबोरेट? हाँ जी। अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर मजबूत करना हो तो स्टार्टिंग हम कर दें, बाद में हम हमारी अपेक्षा से अच्छा वो काम होने लगेगा। ग्रेट, सो यू विल गेट पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन हु माइट डू इट बेटर देन यू, बेटर देन द अनीता मैम। तो लोग हमारा साथ अवश्य देते हैं। जब भी हम कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो लोग साथ। संदेश भी है मैडम आचार्य के लिए। हाँ जी प्रकाश सर। हाँ जी सर, आई कम टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। इसमें जिस व्यक्ति ने शुरुआत की थी, जिसने इस डांस की बुनियाद रखी, फिर आगे जाके वो विलुप्त तो हो गया और टीम के वो लोग आ गए और हो सकता है उसको सब भूल जाए। ये हमारे सीएम राइज की वही बुनियाद है, बाद में इनको सब भूल जाएंगे क्योंकि हमारे बाद जो स्कूल खड़ा होगा, जो हम लोग कठिनाई उठाएंगे तो बाद वाले लोगों को तो सब जमा जमाया मिलेगा। सही सही बिल्कुल बढ़िया, यही होना है सर। शुरुआत हुई, कारमा बढ़ा। एक बात इसमें और विशेष है, कुछ लोग बैठे रह गए, यही हम लोगों के साथ भी होना है। कुछ दूर से देखते रह गए, हमें हताश नहीं होना है, हम अपने कारवा को बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे। राइट, तो काफी लोग सर आपने देखा कि काफी लोग पहले बैठे हुए थे, फिर जब बहुत बड़ा कारवा हो गया तो वो उठ गए। राइट, कुछ लोग लेट उठे पर उठ गए। ओके, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं सर। ओके देन आई आस्क गुप्ता सर, जैन सर आपसे पूछती हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन। इस वीडियो में सबसे मुख्य किरदार किसका था? Who was the most important? आचार्य के रूप में था और ये संदेश हमारे सभी साथियों को भी है उसमें छुपा हुआ कि पहले आप जैसे आपके धैर्य की परीक्षा होगी, आप गए 5-7 दिन आपको लगेगा मैं अकेला ही हूँ और कोई साथ नहीं दे रहा। 1 से 2, 2 से 3 ये योगात्मक वृद्धि है, फिर उसके बाद गुणात्मक वृद्धि होगी। अगर अगले 2 दिन में आपको 1 आदमी मिला है, उसके अगले 2 दिन में 1 मिला है, तो हो सकता है अगले दिन आपको 6 मिलेंगे, उसके अगले दिन 12 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो धैर्य रखें, शुरू में योगात्मक लोग साथ में आएंगे, बाद में गुणात्मक वृद्धि होगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला सर उसका मुख्य किरदार अच्छा था क्योंकि उसने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो को देखकर एक व्यक्ति अगर डांस कर रहा था तो उसको फॉलो लोग नहीं कर रहे थे, काफी समय तक लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक जुड़ा तो उसके बाद काफी लोग जुड़ गए। राइट, सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कि 20 टीचर्स काम कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे हैं, तो जो 4 नहीं कर रहे थे वो कौन थे? जो बैठे थे। लेकिन जो अगर उन्होंने देखा कि वो सब डांस कर रहे हैं तो वो भी उठ के आ जाएंगे। सब डांस करते हैं, वीडियो कौन बना? हम है ना इसके लिए। आप करिए डांस, हम वीडियो बनाएंगे जैसे हमने बात की थी सत्र में कल। Alright, so यही आइडिया था इस वीडियो का, to think about how the first people that you set भी better कर पाएंगे, and your job is going to be to nurture them, उनकी capability बढ़ाना, उनका status बढ़ाना स्कूल में ताकि वो ये कर पाए। One question, ऐसा ही कुछ इंडिया में 1930s में भी कुछ हुआ था। Does somebody want to guess what that was? दांडी यात्रा। थैंक यू सो मच सर। तो दांडी यात्रा भी कुछ ऐसा ही था where गांधी जी just started walking and people just started following him. उन्होंने किसी को बोला नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा कि जा रहे हैं हम, और अगर उन्हें लोग ज्वाइन नहीं करते शुरू के तो वो बनता भी नहीं होता। ऑलराइट, ये हमारा सत्र का फ्लो है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या है, कैसे हम एसएलटी का गठन करेंगे और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक केस स्टडी के जरिए, इसको थोड़ा और समझते हैं स्कूल के सिनेरियो में। Does somebody want to read this? केमिस्ट्री निकालिए। संगीता सक्सेना मैम। एक बड़े स्कूल में प्राचार्य हैं जहां लगभग 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं और 45 शिक्षक। वे अपने स्कूल में एक नई असेंबली पॉलिसी लागू करना चाहती हैं जिसमें विद्यार्थी असेंबली का पूरा कार्यान्वयन संभालते हैं। वे स्कूल के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों को एक स्टाफ मीटिंग में बुलाती हैं और बताती हैं कि मंडे से यह करना है। कुछ एचएम्स और शिक्षक को लगता है कि यह अच्छा आइडिया है और वे अपनी कक्षाओं में बच्चों से बात करने लगते हैं।
कुछ को लगता है कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए यह अच्छा विचार नहीं है, लेकिन वे चुप रहते हैं। वे अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते। कुछ और शिक्षक अपनी कक्षा में अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन किसी छात्र से इसका अनुसरण नहीं करते। कुछ शिक्षक इस विचार से के बेहद खिलाफ है, तो वे अपने आपस में छोटे छोटे समूह में बात करते हैं। कक्षा में सबसे कम बोलने लीस्ट रेडी वाले बच्चों को बिना कुछ बताए असेंबली में भेज देते हैं, ताकि नई पॉलिसी फेल हो जाए और वो ये कह सके कि हमें लग रहा था यह काम नहीं करेगा। दूसरी ओर अब स्कूल में कुछ सेक्शंस के छात्र असेंबली में भाग ले रहे हैं और कुछ को कोई खबर नहीं है। वे जब अपने साथियों से बात करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके क्लास टीचर ने उन्हें क्यों नहीं चुना। Thank you so much for reading that now. So we take 2 minutes. Partner. जब किसी भी संस्थान में 3 प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, 10% एक्सीलेंट, 80% एवरेज और 10% नेगेटिविटी वाले। उसी प्रकार से नीलिमा मैडम को भी 10% नेगेटिविटी वाले लोग मिले। करीब 40 लोगों का स्टाफ था, उसमें 3-4 शिक्षक इस प्रकार के थे जो उनको सहयोग नहीं कर रहे। तो एक लीडर के रूप में जो एक्सीलेंट टीचर हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। तो जो एवरेज वाले 80% है वो एक्सीलेंट बनने का प्रयास करते हैं। ओके, मैंने ये समझा। ओके, तो अगर 10% को आप वो करती मोटिवेट करती तो 80% कर लेते हैं। उनको आइसोलेट रखें, वो अपने आप जब देखेंगे कि अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो फिर वैसा बनने की कोशिश करें। क्या सभी सहमत हैं इससे? और ऑल्सो रविंद्र सर ने जो परसेंटेजेस बताए, 10 एक्सीलेंट, 10 एवरेज, 10 नेगेटिव, सजान सर। लेकिन प्राचार्य जो लीमा मैडम थी, उन्होंने अपने स्टाफ में बुलाकर विजन को बिल्कुल क्लियर नहीं किया। टाइम बहुत कम था। किसी भी चीज को लागू करने के लिए ये टाइम होना चाहिए कि पहले हम विजन को क्लियर करें, अपने स्टाफ को सहमति भी लेना चाहिए। केवल कह देने से कोई काम नहीं हो जाता। भले ही वो विरोध करें, लेकिन सहमति कम से कम 90% अगर सहमति हो जाएगी तो 10% के विरोध से कुछ नहीं होगा। Great. So thank you so much for bringing that point, sir. कि उन्होंने भी जो होगा वो 10, 80, 10, 20, 40, 60 अलग-अलग नंबर सुनने को मिलते हैं, सभी से बात करते हैं तो, लेकिन पहले उन्होंने भी क्या किया, उनके एक्शंस भी देखना जरूरी है। उन्होंने टाइम नहीं दिया बाकी टीचर्स को उसके बारे में सोचने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए। कुछ ऐड करना चाहेगा कोई इसमें? जो है अपने स्टाफ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कॉन्फिडेंस में नहीं लेने के कारण क्या है कि कुछ शिक्षक पक्ष में हो गए, कुछ शिक्षक विपक्ष में हो गए। जो पक्ष में हो गए उन्होंने तो पूरा काम किया, लेकिन विपक्ष वालों ने अपने स्कूल के क्लास के बच्चों को नहीं बताया और उसमें उन्होंने उनका टारगेट था कि इस कार्यक्रम को फेल किया जाए। माने कॉन्फिडेंस में लेना, पहले किसी भी कार्य करने के पहले अपने शिक्षकों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सर। ऐसा होता है हमेशा, होता है कि बच्चे भी जब गेम खेल रहे होते हैं, मेरा केवल प्रिंसिपल बट इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन कहाँ लिए जा रहे थे? टीचर्स। तो एक तरह से वो भी लीडर थे। तो वही केस स्टडी का एक तरह से सार है कि स्कूल जो एक जगह है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप हमेशा दिखती है। इट्स नॉट लाइक द आर्मी, इट्स नॉट लाइक अ हॉस्पिटल। There is distributed leadership in the schools because there will always be teachers who are much closer to the students. Teachers बच्चों से directly उनके साथ रहेंगे, रोज उनसे काम करवाएंगे, उनको बेटर जानेंगे, उनके रिजल्ट्स के बारे में बेटर पता होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे। तो स्कूल इज अ प्लेस जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप होगी, चाहे वो औपचारिक लीडरशिप हो या नहीं हो। So what can we do as leaders? We can embrace that and make better use of it. तो नीलिमा मैम फिर क्या कर सकती थी, क्या बेटर कर सकती थी इस सिचुएशन में? टिक निकालें। जानना था कि जो एजेंडा फॉलो करना है तो उसको पहले एक मीटिंग में बुलाकर सबको कन्विंस करना था और सबको साथ में लेना था, ताकि एक टीम भावना जागती और उसके बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता तो नियरली 90 अबव हम उस परसेंटेज को अचीव कर पाते और जो असेंबली थी और अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाती। एक टीम को साथ नहीं लिया, कन्विंस नहीं किया और एडवांस में जो प्लानिंग थी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनकी सहमति जरूरी थी। दैट्स राइट।
रोल डिफाइन। अश्विनी सर भी ऐड करें कि रोल डिफाइन नहीं थे, टीम को साथ लाना था। चलो वंस मोर, कैन समबडी हु इज वेयरिंग, कहा कि आप आंखें बंद करें और कहानी सुने, तो शी कुड हैव डन दिस। नीलिमा मैडम ने बोलना था ये मेरा विजन है, आप आंखें बंद करें और असेंबली को इमेजिन कर। द अदर पॉइंट्स विल कम। राइट, थैंक यू मैम। कि जिस तरह से हमने भी कल जापति ने हमारे साथ एक्टिविटी करवाई थी, एक विजुअलाइज करवाया, भागीदार बनाए, सभी को बनाती अगर कोई असेंबली के बारे में सोचने में। एनी अदर एक और कलर चुनते हैं, समबडी वेयरिंग वाइट। सर है वाइट के। अनीता मैम आपका भी आ गया कि डांसिंग सर एक सर वो वाइट नहीं है बट ठीक है। इस वीडियो में वाइट से बोला है, वाइट से कराएंगे। ठीक है, वाइट से ही कराना पड़ेगा। ऑन नहीं आवाज आई। तो वाइट से ही कराना पड़ेगा। इस वीडियो में नीलिमा मैडम ने सबको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया और जो सबसे बड़ी कमी थी उन्होंने लीडरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। उनको डिफरेंट लीडर्स की टीम बनाने की पहले और उन टीम्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर के फिर अपनी बात कहती वो, और ये सारी जिम्मेदारी टीम्स को दे दी गई होती तो फिर ये काम आसानी से हो जाता और सफलता से होता। उनके फेलियर का एक कारण यह भी था। थैंक यू। थैंक यू सर। तो असेंबली के लिए जो कमेटियां होती है ना, उन कमेटी पे भी वो विचार करती। मान लीजिए ये दीवार उनको आगे सरकाना है असेंबली की, तो उनको क्या करना था, एक बार दीवार को हिलाना था, पूरे स्टाफ की बैठक, दूसरी बार दरवाजे पे फोर्स लगाना था, किसी एक असेंबली जो कमेटी की बैठक, एक खिड़की पे फोर्स लगाना था, स्टूडेंट्स के जो हाउस वगैरह रहते कैप्टन उन बच्चों को बुला के, और उसके बाद फिर टोटलिटी में सब काम हो जाता, सब लोग कर लेते। ऐसे मल्टीपल डायरेक्शन में भी कर सकती थी। शायद किसी से ये सुझाव आ जाता, स्टूडेंट लेड असेंबली अगर करती है शायद उन्हीं से सुझाव आ जाता, फिर वो हो सकता है शायद आगे लोगों से बात करते हैं, बाकी लोगों से, वहाँ पे अगर एचएम्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बाकी लोगों से बात करते, बच्चों से भी बात करते, और फिर शायद बच्चे खुद ही वॉलंटियर करते, उससे पता चलता कि वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये विश्वसनीय और कोलैबोरेटिव रिश्तों पे आधारित है। कल बात की थी हमने काफ़ी सारी रिश्तों की, ये भी बात की कि कैसे सर्कल टाइम और भी स्पेसेस को यूज़ किया जा सकता है वो ट्रस्ट बनाने के लिए। ट्रस्ट इज की एवरीवेयर, चाहे वो क्लासरूम वॉक हो, असेंबली हो, स्कूल लीडरशिप टीम हो, और सभी हितधारकों का विचार और वॉइस शामिल करने का एक तरीका, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, एंड वन वे टू एंश्योर दैट इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जो चीज़ें हम नहीं होती, हम कल बात कर रहे थे ना स्टाफ मीटिंग में कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, टीचर्स को बोलते हैं, एक तरीका यही है इंश्योर करने का, पूछना, बोलना नहीं हुआ, एंड प्रिजर्व पॉजिटिव स्कूल कल्चर, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। एंड इट्स व्हाट इट्स नॉट वन वे डेलीगेशन और एक तरफा कार्यों का देना। तो ये है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। आप लोग अपना एसओपी तो पढ़ के आए होंगे, एसओपीज पढ़ के 1.7 एंड 1.8 राइट। तो उसमें ये स्ट्रक्चर दिया गया है जी, एक स्कूल लीडरशिप टीम सीएम रहे स्कूल्स में कैसी दिखेगी। सो वी हैव प्राचार्य ऊपर सबसे, देन यू हैव प्राचार्य के साथ जो आपकी कोर कमेटी है, जो आपके फर्स्ट 7-8 डांसर्स हैं, वो कौन है, एसएलटी। उसके अंदर कौन कौन होगा, सम टीचर्स, एचएम, पीएसएचएम, एमएसएचएम एंड वाइस प्रिंसिपल राइट। एंड इनके नीचे पे हर एक इंसान जो यहाँ पे है वो एक समिति का हेड करेंगे। तो वो क्या समितियाँ होगी, अकादमिक, अनुशासन, पाठ्य सहगामी, बिल्डिंग, स्टूडेंट लीडरशिप, समुदाय वाले। अकादमिक होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके कुछ हाँ सर आपका आशीष सर, सामूहिक साझा जिम्मेदारी, आशीष सर ऑलरेडी बने हुए हैं ओके, और कामकाज इसी से होता है राइट। अकेला प्राचार्य क्या करें, अकेला प्राचार्य क्या करेंगे, तो बाकी सब लोग हाँ ये सब बने हुए रहते हैं, अभी इस समय भी बने हुए हैं हाँ जी है ना। और ये इसी तरह से काम होता है, और कामकाज को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराना काफ़ी आसान होता है। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराने के लिए यूजफुल होते हैं ये। एनीवन वांट्स टू ऐड इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराने
जैसा अभी हम लोग बोल रहे हैं कि स्कूल अगर चलाना है तो सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब हम इतनी सारी समितियां बनाते हैं, उनका हेड सारे टीचर्स को बनाते हैं, तो सारे टीचर्स को इम्पोर्टेंस मिलती है और सबका इन्वॉल्वमेंट मिलता है, जिससे स्कूल चलाना आसान होता है। Great. We talked about voice in distributed leadership, right? तो सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। What else? एक देवेंद्र सर ने एक बहुत सही चीज कही थी कि सब काम प्राचार्य नहीं करेंगे, and all work doesn't have to happen at this level also. किया तो हर व्यक्ति को लगता है कि इस स्कूल के लिए मैं भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ और वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा, जो हमारे स्कूल के लिए बहुत कारगर कहलाएगा। राइट। तो जैसे मैम ने बोला, शैलजा मैम ने, people get a voice, people feel important and ownership फिर उसी से आती है उनमें कि मैं स्कूल में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर हूँ। ओके, तो और कमिटी मिलते रहेंगे अपने आप, अलग अलग में भी शायद पाठ्य सहगामी समिति जो है वो ज़्यादा जल्दी मिले जब एनुअल डे चल रहा है जैसे, या स्पोर्ट्स डे चल रहा है, नीड्स के हिसाब से। अभी आप जाएंगे तो शायद बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर समिति का बहुत काम होगा अभी, क्योंकि सारा रिपेयरिंग एंड ऑल दैट काम कराना होगा, तो उस हिसाब से मिलेंगे। बट एसएलटी और जो ये एकेडमिक कोर एकेडमिक वर्क वाली समिति है उनको हमेशा मिलना चाहिए। तो इनके कुछ वो दिए हुए हैं भूमिका और जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं। एसएलटी है और जो सदस्य हैं, स्कूल की पूरी योजना बनाना, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जिसे कहते हैं, सारी शैक्षणिक गतिविधियों का नेतृत्व करना, पूरी कमिटीज और उप समिति हैं जो उनका गठन करना, कौन सिलेक्ट करना उनमें कौन लोग आएंगे, बाकी सबके बीच में कार्यों का समन्वय बनाना जो बाकी की समितियां हैं। एंड एक कल हमने बात की थी चेंज मैनेजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या था, वो एक स्टेप था हमारा। जब भी हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक बहुत जरूरी चीज होती है करना, वो क्या होता है, प्लानिंग के बाद मॉनिटरिंग। सो जो अलग अलग समितियां जो काम कर रही हैं वो भी आपको डिसीजंस लिए जा रहे हैं नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कमिटीज की है, बट आपको उसको पता रहना कि क्या हो रहा है, knowing what is happening and being able to support them, क्योंकि maybe things may not be easy. We talked about capability build भी, क्षमता वर्धन भी जरूरी है। एंड ऐसे ही समिति अपने अपने एरियाज में अपनी अपनी रणनीति बनाएंगी और फिर उस पर कार्य करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे 8 ग्रुप्स हैं, हम हर ग्रुप एक एक कमिटी लेगा और उनके 2 चीज़ों के बारे में, तो जो समितियां हैं, एक एक समिति हम लेंगे और 2 चीज़ों के बारे में सोचेंगे। क्या 2? हर समिति की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एंड सेकंड इमीडिएटली, क्योंकि ये पहली बार हमारा सीएम राय स्कूल में पहली एसएलटी बनेगी, तो उनके इमीडिएट टास्क क्या होंगे, राइट? तो क्या हर्षा मैम, व्हाट विल वी डू इमीडिएट? अभी क्या, हाँ, तो 2 चीज़ें हैं, जनरल टीम जर्मनी सभी सामने में आएंगे, ड्रेस में आएंगे, अनुशासन में रहेंगे, जो एसओपी जो बनी उसका नियमों का पालन करेंगे। ओके, तो डिसिप्लिन के जो क्या नियम होंगे स्कूल में वो बनाना, पहले डिसाइड करना क्या होगा। थैंक यू। ओके, तो इसी तरह बाकी सब समितियों का भी लिखेंगे। ये हमारी 8 कमिटीज हैं हमारे। अब हम चार्ट बाद में देते हैं और 10 मिनट शेयरिंग के लिए वी कैन गो नाउ। आदि की जांच करना, ये जांच, हाँ। फिर लिखिए कक्षाओं के लिए सह योजना बनाना, सह योजना, कक्षाओं के लिए सह योजना बनाना, और उनमें शिक्षकों की जो कोई समस्याएं भी होंगी उन पर चर्चा करेंगे। हाउस कॉम्पिटिशन, गतिविधि, हाउस गतिविधियाँ, हाउस कॉम्पिटिशन, ठीक है, दे दो दूसरा कलर दो। समस्या
हाँ सही है, जो लिखा है 5 मिनट टाइम दे, क्वालिटी चलिए वापस आते हैं। Are we ready? Yeah. Waiting for one group to just turn around. आपका बेटा, thank you दुबे sir, thank you group Japan. Very objective criteria. एक मिनट। अरे कराई जी इधर पीछे से थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा डार्क हो जाए, मैं आपको देता हूँ मौका। हाँ निकल जाऊंगा, जमाने में टाइम लगेगा। अच्छे सर ठीक। हाँ सर, खराब हो जाएगा सर। फिर इसके बाद हमारी समिति का काम रहेगा कि सबसे पहले वो पूरी बिल्डिंग का स्कूल का सर्वे करेगी। तो सर्वे करने के बाद वो देखेंगे कि कहाँ मतलब आवश्यकता हम लोग की प्रायोरिटी हम उसकी हमने अलग अलग एरिया निकाले हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमको रिपेयरिंग माइनर रिपेयरिंग है पहले हम वो करवाएंगे और उसके बाद जो है पूरे स्कूल का हम वाइट वॉश करवाएंगे। सेकेंड नंबर पे फिर हमारी जो है जो भी हमारे क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी हैं, लैब्स हैं, इन सबको हम देखेंगे कि यहाँ पे भी मेंटेनेंस की कुछ आवश्यकता है तो उसको भी हम उसको रिपेयरिंग करवाएंगे और उसके बाद जो है वाइट वॉश करवाएंगे। फिर हमारा वॉशरूम कैसा है, उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता यदि है तो उसको भी करवाएंगे। पानी की क्या व्यवस्था है उसको हम करवाएंगे और उसके बाद जो है हमारे जो CWSM बच्चे हैं उनके लिए जो है उसकी भी क्या सुविधा है उसको भी हम देखेंगे और उसकी भी व्यवस्था हम करवाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी जितनी भी लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स हैं वहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर्स हैं उसको भी हम फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम ठीक करेंगे और लास्ट में जो है यही सारी सुविधाएं जो है स्कूल में करना चाहेंगे और यही सारी चीज़ें। थैंक यू। मैडम जो कि ये सब काम कर रही है और मुझे अभी स्कूल नहीं मिला है तो मैं एज अ लीडर सबसे पहले अपनी एक टीम बिल्डअप करूँगी और फिर उस टीम को अपने साथ लेकर और उस टीम में मैं इंजीनियर भी अगर कोई आसपास होंगे उन्हें लूँगी, साथ में हमारे अकाउंटेंट भी होंगे और जो एक अगर हो सका तो एक आर्किटेक्ट भी मैं ज़रूर लेके चलूँगी अपने साथ और फिर सर्वे करेंगे हम लोग क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देन वी हैव टू प्लानिंग करेंगे कि अगर अभी हमें सिर्फ मान लीजिए कम पैसा दिया जा रहा है कि अभी आपको इतने में काम करना है तो हम वो बजट भी देखेंगे कि हमारा उतने में कितना काम हो जाएगा। उसके बाद हम प्लानिंग के बाद में जो प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारा उतने पैसे में हमारे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हमें ज़्यादा काम करना है वो मैं करूंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे और बेसिक रिक्वायरमेंट में जो भी मेंटेनेंस है वो काम करेंगे, वाइट वॉश करना है और वॉशरूम्स और बेसिक नीड्स जो वाटर मैनेजमेंट है इन सब पर जरूर रहेगा। Just want to make one request to everyone. When people are sharing here, request सब अगर उन्हें सुन सके because हम देखिए हमने सबको सेम काम नहीं दिया है। क्या किया हमने? सबको अलग अलग कमिटी दी है बट आपके स्कूल में सिर्फ बिल्डिंग कमिटी होगी, आपके स्कूल में सिर्फ पाठ्य सहगामी ऐसा नहीं होगा, राइट? सो यू हैव टू इफ यू लिसन टू एवरीवन आपको नए आइडियाज़ आएंगे अपने ही स्कूल्स के लिए, ये आइडिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीज़ से सहमत ना हो तो वो भी कर सकते हैं, तभी एक रिच चर्चा बनती है, राइट? सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग इफ एवरीवन कैन लिसन। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी पॉइंट सारी ही चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। अगर लैब है तो हमें लैब
के लिए जो भी साइंस टीचर्स हैं उन्हें लेना पड़ेगा, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उन्हें भी लेना पड़ेगा। सिर्फ एक अगर हमने कमेटी का जो भी मेंबर को हेड बनाया उससे भी काम नहीं चलेगा। टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप यहाँ पर दिखाना। इसमें यदि आप लोग कोई क्वेश्चंस करना चाहें, हाँ जी प्लीज, एनी क्वेश्चन, इसमें यदि कुछ कमी रही है तो प्लीज आप लोग बताएं इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। अभी जो टाइम लिमिट दिया हो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देंगे? किस चीज की कमी है, क्या चीज टूटी फूटी है, पहले हम उसको देखेंगे। दो चीज पूछो आपसे जी, आइदर क्लासरूम और टॉयलेटरीज और लेबोरेटरीज जो वो है, तो हम इन तीनों में से प्रेफरेंस सबसे पहले किसको? अभी फिलहाल क्लासरूम देखिए अभी क्योंकि देखिए स्टार्टिंग अभी भी हमारी हो रही है क्योंकि अभी स्कूल बंद हो जाएगा, अब हमको ये सब काम करना है तो हम शुरुआत सभी से करेंगे। सबसे पहले नहीं, पहले मैं पूरी बिल्डिंग देखूंगी, बिल्डिंग में जहाँ ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पहले उसको रिपेयरिंग करवाऊंगी, देन उसके बाद देखूंगी कि क्लास में ज़रूरत है या वॉशरूम में ज़रूरत है, जो भी है तो प्रायोरिटी मेरी जिसकी रहेगी पहले मैं उसको करूँगी, उसके बाद फिर मैं क्लास आइदर विल बी द टॉयलेट्स और आइदर विल बी क्लासरूम, इन दोनों में से आपको एक बताना कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बेसिक। गुड। एनी अदर क्वेश्चन? टॉपिक समितियों को दी गई है पाठ्य सहगामी समिति। तो ये हम सब जानते हैं कि किसी विद्यालय का प्रतिबिंब एकेडमिक के बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं ही होती हैं। तो ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में बहुत ही अच्छी और मैनेज्ड होनी चाहिए और इसी के कारण विद्यार्थी स्कूल आने के लिए आकर्षित होते हैं और अभिभावक भी उस विद्यालय को इन क्रियाओं के बाद जानते हैं कि इस विद्यालय में क्या क्या काम हो रहे हैं और कितना अच्छा काम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन क्रियाओं को अच्छे से आयोजित करें और इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय में पाठ्य सहगामी कमेटी का गठन करेंगे और उसमें ऐसे लोगों को लेंगे जो इन क्रियाओं में रुचि रखते हों, जिनको इनका ज्ञान हो म्यूजिक प्ले करने का, गाने का, डांस करने का, तभी ये क्रियाएं बड़ी आसानी से और अच्छे से चल सकेंगी। इन क्रियाओं को चलाने के लिए हमारा स्कूल अभी नया खुल रहा है, तो विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम अपने विद्यालय को प्रिंट रिच करेंगे, जिससे कि इसका लुक अच्छा दिखे और इसको देख करके सभी आकर्षित हों और हमारे विद्यालय की संख्या अधिक से अधिक बढ़े छात्रों की और उसका प्रचार प्रसार हो कि एक बहुत अच्छा नया विद्यालय बन रहा है और इसमें ये सब क्रियाएं होने वाली हैं। अपने विद्यालय में हम विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करेंगे, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रार्थना सभा का आयोजन, विभिन्न महापुरुषों के जयंतियों का आयोजन, विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन और हाउस वाइज जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं इनका आयोजन, जिससे कि उनमें आपस में कंपटीशन की भावना पैदा हो और हम सब जानते हैं कंपटीशन से ही हमें बेस्ट प्राप्त होता है। तो इन सब विभिन्न क्रियाकलापों के आयोजन के लिए हम सभी को एक बैठक लेंगे। पहले बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हमें किस किस क्रियाविधि का, गतिविधि का आयोजन करना है, कब कब करना है, एक उसका कैलेंडर बना लेंगे और उसके बाद जो भी हमें क्रियाविधि गतिविधि करनी हो उसकी हम हफ्ते भर पहले सूचना देंगे सबको, जिससे कि उसकी तैयारी कर सके अच्छे तरीके से। और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए टीम लीडर्स रहेंगे जो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जब ये आयोजन होंगे तो उसका हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे और उसको डिस्प्ले भी करेंगे, न केवल अपने स्कूल में बल्कि विभिन्न चैनलों पर भी, जो अलग अलग चैनल्स होते हैं जिले के, राज्य के, नेशनल अपने लेवल के, उन पर इसका डिस्प्ले भी करवाएंगे, जिससे कि हमें इसका प्रचार प्रसार हो और ये जानकारी सबको मिले इस विद्यालय में कितना अच्छा काम हो रहा है। इन सब क्रियाओं को कराने के बाद उसकी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे कि ये सब क्रियाएं अच्छे ढंग से संपन्न हुई या नहीं, जो हम चाहते थे कराना वो हम कर पाए कि नहीं कर पाए, और सबसे हम फीडबैक भी लेंगे। इससे हमें जो इन क्रियाओं को आयोजन में जो कमियां रह गई हैं
अगली बार हम उन कमियों को दूर करके और अच्छे तरीके से उसका हम आयोजन कर सकें। थैंक यू। इसमें एक क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों में लाउड स्पीकर, म्यूजिक के साधन वो इंक्लूड नहीं, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करेंगे। वो चीज़ें सबसे ज़्यादा। और एक और है कि जो इसमें ट्रेंड लोग हैं या कम ट्रेंड हैं, उन्हें ट्रेंड करना, या फिर उनकी भागीदारी जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है। बताया था, हाँ जी, भागीदारी बोला सर ने, ट्रेन करना हो सकता है, क्योंकि सर आप बोल रहे थे हम करेंगे, बट ये आप नहीं करेंगे, आपको आपकी समिति करेगी। हाँ जी, तो समिति को आपको उनसे हाँ जी, नहीं हाँ वही जगह देते हैं, बट आपको किसी से करवाना पड़ेगा। एक प्रश्न सुझाव है, बहुत अच्छा से सुझाव यही है कि जो चूंकि हम लोग सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां संचालित करेंगे, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग कम से कम एक मासिक कैलेंडर उसका जरूर बना दें कि हम आधा साप्ताहिक लिखा है, मतलब ये रहे कि हमें बेल बिफोर टाइम को जानकारी रहे, तो बच्चे हमेशा तैयार रहेंगे और कौन कब किस में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे पता हो। थैंक यू। सो एक इम्पोर्टेंट चीज है, राइट, जो एनुअल कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, उसमें काफी कुछ लिखा होता है, बट क्या वो सब उसी दिन फॉलो होता है? नहीं होता है। तो ये सीएम राइज स्कूल में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे 13 सितंबर को सारे स्कूल में सारे बच्चे ये निबंध लिखेंगे। ऐसा ना हो, आप डिसाइड करें इस महीने में आप क्या गतिविधियां करवाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मैम आई गिव मच समिति के बारे में बताए हैं, पाठ्य सहगामी समिति, उसका जो गठन है वो बता दिया आपने, उसके कार्य बता दिए। एक इसमें एक बिंदु और जोड़ देना चाहिए था, कोई एक ऐसा पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण, और उसको कौन लोग करेंगे और कैसे करेंगे, तो शायद बहुत स्पष्टता आ जाती हमारी बात की, या जो भी अभी आएगा बोलने वाले वक्ता वो ऐसा करे तो ज़्यादा अच्छा चीज़ें हैं, सबको नहीं, वो आपने सभी का सम्मिलित कर लिया। हम ये चाह रहे हैं एक कोई उदाहरण ले ले आप पाठ्य सहगामी क्रिया का, उसका उदाहरण ले लें, उसमें कौन सदस्य रहेंगे, कौन और कार्य क्या है, उसका कैसे क्रियात्मक होगा सर, जब बैठक हमने हम एक उदाहरण कह रहे हैं, हम अभी इम्प्लीमेंटेशन कर जैसे स्कूल का गीत बनाना है, वो भी इस कमेटी का काम है, जरूरी है, तो क्रीड़ा समिति भी जो है इसमें बननी चाहिए। कॉम्पिटिशन होगा उनमें आपस में। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Sit down a little quickly so that everyone gets their turn. 2 minutes देंगे मैम टाइमर पे, ताकि एवरीवन कैसे जान। ओके, गो। नीदरलैंड ग्रुप है हमारा, और इसमें हमें अभिभावक एवं समुदाय समिति के बारे में बताना है विद्यालय के लिए। और क्योंकि अब हम विशिष्ट विद्यालय के प्राचार्य हैं सीएम राइज के, तो सीएम राइज विद्यालय में जाते से ही जो हमें गतिविधियां करनी है, उसमें ये जो SLT है, स्कूल लीडरशिप टीम, इसमें प्राचार्य, उप प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। और सबसे पहले जाते से ही हमें PTM का आयोजन करना है। तो इसके लिए हम कक्षा अध्यापकों से और प्रवेश समिति से संपर्क करेंगे और उनसे बच्चों के मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम SMDC के सदस्यों के मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे। उस एरिया के वरिष्ठ और एवं सम्माननीय जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके नंबर प्राप्त करेंगे। दूसरी स्टेप में हम उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क कर हम अपने सीएम राइज विद्यालय की मीटिंग की जानकारी देंगे, दिनांक समय बताया जाएगा, उसका जो एजेंडा होगा उसको भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर या उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। इसके पश्चात जब मीटिंग प्रारंभ होगी तो उसमें हम विद्यालय का विजन एवं मिशन बताएंगे, विद्यालय क्यों विशिष्ट है उसकी सारी जानकारी देंगे, सारी जो सुविधाएं, स्पेशल सुविधाएं जो उस विद्यालय में उपलब्ध होने वाली है उसकी जानकारी देंगे। फिर अब हमें समुदाय से सहयोग प्राप्त करना है और
सीएम राइस विद्यालय के प्रचार प्रसार का की जिम्मेदारी हमें समुदाय को भी देनी है। तो इस संबंध में हम उनसे आग्रह करेंगे। और प्रचार प्रसार और प्रवेश, ये दो इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो प्रवेश है उसमें हमें नामांकन अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करना है। तो इसका एडवर्टीजमेंट, हमारे स्कूल का एडवर्टीजमेंट और दूसरा नामांकन, ये दो जिम्मेदारी हमें जाते से ही सबसे पहले पूर्ण करनी होगी। Exact 2 minutes. Thank you so much. Questions? Suggestions? Questions? कुछ जैसे गांव के उसमें जो है हर एक मोहल्ले गांव के हिसाब से जो है कुछ वॉलेंटियर्स अपन वॉलेंटियर नियुक्त करेंगे। उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। तो और उनको जो है पेरेंट्स वॉलेंटियर, हाँ पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी कि वो उनको क्या क्या काम करना है। इसके अलावा जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी से जो है हम क्या मदद ले सकते हैं। तो कम्युनिटी के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको भी हम उनके नंबर और फिर उनके एड्रेस जो है ये समिति जो है उनके पास रहेगी। बाकी बता देंगे बाकी बता देंगे। नहीं, नंबर नहीं आएगा। आपके जो सजेशन से बता दीजिए। कैसे करोगे वो बताओ। एक काम करेंगे, वहाँ बता देंगे। लगा होगा सर। सबका ध्यान रखना चाहूंगा प्लीज। जापान की तरफ इधर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, सभी प्रकार की समितियां हमारे विद्यालय में होती है और अमूमन आज की तारीख में हम लोग अधिकतर रहते हैं कि मध्याह्न भोजन मिल रहा है, उस पर बहुत ध्यान है हमारा। गणवेश मिली की मिली ध्यान है, किताब मिली की मिली ध्यान है, कौन आ रहा कौन जा रहा क्या है, दुनिया भर की बातों पर ध्यान है। अगर कहीं ध्यान नहीं है हमारा, हमारे आज की तारीख में अगर कोई मिसिंग हो रहा है तो वो है एकेडमिक पॉइंट। सभी विद्यालयों में करीब करीब हो रहा है। तो आज भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा अगर एकेडमिक पॉइंट सपोर्ट अगर मजबूत होता है तो जो बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं वो पूर्ण हो सकती है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा हार्ट है, पूरा एजुकेशन का हार्ट है, इसी को लेकर के मैं पीएल बसेर जापान समिति की तरफ से मेरे सहयोगी आदरणीय शिवपाल मांझी साहब आपके समक्ष ये जैसा भी आदेश हुआ उसके अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अकादमी समिति, इसमें जो सदस्य होते हैं प्राचार्य, क्योंकि अब एसएमडीसी में तो हमारे यहाँ पर जो वरिष्ठ रहता है वो उसका अध्यक्ष रहता है, लेकिन इसमें प्राचार्य खुद अध्यक्ष, उपाचार्य और दो हमारे एचएम साथी है, प्राइमरी सेक्शन के, मिडिल सेक्शन के, और एक और विषय का जो संबंधित रहता है वो इसका सदस्य है। इसमें हमारा जो सबसे पहला हम क्या लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो मैं मोटो जो रहता है हमारा सबसे बड़ी लक्ष्य, विद्यालय का जो मोटो जो विशेष लक्ष्य होता है गुणात्मक शिक्षा, है ना, रिजल्ट अच्छा बने, बच्चे अच्छे, ये मोटो रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर समय सारणी का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम पंजी, कार्य योजना, शिक्षक दैनंदिनी, इसके लिए निदान कक्षाओं का संचालन, मासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक परीक्षाओं का संचालन, समीक्षा, ये हमारा उत्तरदायित्व है। फिर हम इसको कैसे पूरा करेंगे, तो जैसे हम विद्यालय, जैसा मैं बोल रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे जाएंगे सबसे पहले आप क्या करोगे, तो निश्चित रूप से जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास मानव संसाधन कितना है और कैसा है, कौन कौन से विषय के शिक्षक उपलब्ध है और किस किस लेवल के हैं, कितनी योग्यता के हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम कालखंड का निर्धारण करेंगे और उसको उसके हिसाब से टाइम हो गया है। तो हमारे साथ ऐसे अन्याय हमेशा होता है, अगर मध्याह्न भोजन हो तो दिन भर होता रहेगा और किताबों के लिए दिन भर होती रहेगी। कोई निरीक्षण पर आएगा, बच्चों को पूछे क्यों किताब मिली कि नहीं मिली, क्यों मध्याह्न भोजन, आज भोजन क्या था, कोई नहीं पूछेगा आज क्या पढ़ाया था, पालक। ओके, थैंक यू। शिक्षकों के उपलब्धता है, उसके बाद छात्र संख्या के अनुसार हम कक्षा का निर्धारण करेंगे, वर्ग बनाएंगे उनके, फिर पाठ्य योजना के लिए शिक्षकों को बोलेंगे सभी अपनी पाठ्य योजना बनाएं और कक्षा का उसके बाद अवलोकन करेंगे, शार्टली चल रहा हूँ, फिर टीएलएम का निर्माण के लिए बोलेंगे, फिर समितियों के विभिन्न समितियों के निर्माण के लिए बोलेंगे, फिर क्लब की बनाएंगे और छात्र परिषद की बात करेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बोलेंगे, क्लब बनाना, शार्ट में अंत में समापन आपका जैसा निर्देश किया। वैसे इसमें बहुत सारी बातें हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, बहुत सारी बात बोल सकते हैं, बहुत सुझाव, इसमें बोलना भी चाहिए और बोलने की गुंजाइश हमने रखी भी। आप ना बोलोगे तो आपकी मर्जी, हमने आपके लिए गुंजाइश रखी बोलने की। सुझाव, क्वेश्चंस एकेडमिक कमेटी पे तो
सर इसमें चैलेंजिंग ये होगा कि आपने कहा रिजल्ट की बात है, रिजल्ट 100% होना अलग बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब रिजल्ट होना अलग बात हो जाए। 100 में यदि 98 बच्चे फर्स्ट क्लास है तो ये गुणवत्ता हो गई। तो इसके लिए एकेडमिक समिति को विशेष ध्यान देना होगा, गुणवत्ता शिक्षा में अधिक से अधिक बच्चों में फर्स्ट क्लास लाने का प्रयास अधिक होना चाहिए। बिल्कुल मैम, यही बोला था मैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बोली थी। और एकेडमिक समिति में रेमेडियल क्लासेस को भी चांस होना चाहिए। इसमें लिखा भी है कि शाला के बाद 1 घंटा कक्षा लेने की बात है, तो हम मॉर्निंग में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए। साल भर हमने इसका उपयोग भी किया अच्छे से समिति थी। अनफॉर्चुनेटली फिर भी रिजल्ट बिगड़ गया। सपोज आप तो समिति को ज्यादा दोषी मानेंगे या इंडिविजुअल टीचर्स? एकेडमिक में रोल बेसिकली किसका ज्यादा होगा और आप उसको किस तरह से एनालाइज करोगे? प्रश्न कर रहे हैं आप, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे ये जानना चाहता हूँ। कभी कभी प्रश्न ये समिति हमको आता है, हमको उत्तर हमें आता है, हम प्रश्न करते हैं। मैं सोचता हूँ इसका उत्तर आपको भी याद है। नहीं, मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए, मुझे भी नहीं मालूम, एक एनालिसिस के लिए सदन में ये बात छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमने समिति बनाई है, हमने विभिन्न प्रकार की समितियां हम बना रहे हैं यहाँ पर नेचुरली, और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं जैसे आपने हमारे सिस्टम में भी देखा, रिजल्ट बिगड़ता है तो SCN सीधे उस सब्जेक्ट टीचर को जाता है, राइट? तो समिति को हम ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा कुछ विचार करके हम लोग इसमें ऐड करें रिजल्ट एनालिसिस करते समय। बिल्कुल, ये भी सर का कहना सही है। जिसका बिगड़ गया, जबकि दोषी और कोई भी होता है, टीचर उपलब्धि रहा है, मान लीजिए बहुत सारी चीजें आती है इसमें। 5 सेकंड। एक्चुअल में सर दोषी के लिए जब युद्ध होता है तो हार जीत नायक उसकी होती है, लीडर की। असफलताएं हमेशा प्राचार्य की, मतलब लीडर की जिम्मेदारी होती है, सफलता सबको बांट दी जाती है। होना भी यही चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल राइट सर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें जैसे आपने अकादमिक समिति बनाई, मेरा थोड़ा सा इसमें सजेशन ये था कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई इसमें विशेष कक्षाओं के बारे में नहीं बताया। हमने ये सोचा था कि रमेश जी सर के लिए कुछ छोड़े, वो बोलते कि बोलते हैं सफाई में, जैसे आपने काम बोल के आया था कि बोलना। तो मेरा एक सुझाव इसमें ये रहेगा कि इसमें अकादमिक समिति में इस चीज को विशेष रूप से जोड़ा जाए कि बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आप लोग क्या तैयारी करेंगे और क्या आयोजन करेंगे। मेरे ख्याल से आजकल जो चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस सभी स्कूलों में अरेंज हो जाती है, और स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको यदि किसी ग्रुप से, कोचिंग ग्रुप से जोड़ दिया जाए किसी विशेष 1 आध घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। इससे बच्चों में कंपटीशन की भावना विकसित होगी और बच्चे अच्छे से कुछ करने के लिए लालायित भी रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें कहने की गुंजाइश इसमें, बहुत बृहद है, ये विशाल है। कोविड रिलेटेड अब बच्चे जब आएंगे तो बहुत गैप्स होंगे, तो वो भी शायद एक इनिशियल कार्य हो कि पता करना चाहिए, बेसलाइन करना, ब्रिज कोर्स और बेसलाइन उसके लिए होता है, जनरल गवर्नमेंट के कोर्स होता है। ओके, थैंक यू सर। तालियों के साथ मैं जाना चाहूंगा, तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने प्रेजेंट किया, फिर लोगों ने उन्हें क्वेश्चन किया, हमारी जो कलेक्टिव हमारे एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने कॉमन काम किए थे उसके हिसाब से शेयर किया, चैलेंज किया। तो ग्रेट, आई होप ऐसे ही डिस्कशंस कंटिन्यू हो, वो 1 वे ना हो, हर चीज में 2 वे। सो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज पे हम सोचना चाहते थे, ये हो गया। तो एक मैं चीज पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी, विच वाज हमने बात की थी राइट, कि अलग अलग समितियां बनेंगी, आपने सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे, तो कौन सा काम या कौन सा डिसीजन प्राचार्य को लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन SLT को लेना चाहिए, और कौन सा डिसीजन किसी समिति के लोगों को लेना चाहिए, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डिफरेंट केसेस किए हुए हैं वहाँ पे, हम सोचते हैं, इसका कोई राइट आंसर नहीं है, बट हम सोचते हैं कलेक्टिवली कि इन सिचुएशंस में डिसीजन कहाँ लेना चाहिए, ताकि कमिटीज में ओनरशिप भी आए, ताकि आप भी इफेक्टिव बने एज अ प्राचार्य, अपना टाइम इफेक्टिवली यूज करें। तो एनुअल डे हो रहा है, उसके प्रोग्राम का सीक्वेंस डिसाइड करना है, ये डिसीजन किसको लेना चाहिए, किस कमेटी को या किस लेवल पे। ओके, देवेंद्र सर। सांस्कृतिक समिति हमारी बनती है,
उसके जो लीडर होता है उसको ये डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। ओके सर, क्या प्राचार्य को इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? प्राचार्य को इन्वॉल्व तो होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक होना चाहिए कि जब कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसके पहले तक के जो बातचीत करनी है वो प्राचार्य करते हैं इंटरनली। लेकिन जब डिसीजन में सीक्वेंस क्या होना चाहिए प्रोग्राम का, पहले कौन सा प्रोग्राम होगा, फिर कौन सा प्रोग्राम होगा एनुअल डे में, नहीं तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन तो केवल जो सांस्कृतिक समिति है उसके हेड और जो सांस्कृतिक समिति के मेंबर हैं उन्हीं लोगों को डिसीजन लेना होगा, इसमें प्राचार्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू देवेंद्र सर। क्या सभी सहमत? महत्वपूर्ण होता है और प्राचार्य को रहना ही चाहिए। हर समिति का निर्णय में प्राचार्य रहेगा, समिति उसी के अंदर में डेलीगेट होगी और प्राचार्य बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्राचार्य के बिना कोई एग्जिस्टेंस रहेगी समिति के। मैं 100% इससे ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है सर आपने कि प्राचार्य हर डिसीजन लेंगे, हर चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, उनके बिना कुछ नहीं होगा। तो हमने वो वीडियो में क्या देखा था, जब बच्चा वो लड़का डांस कर रहा था, तो जब सब आ गए थे तो क्या हुआ था, वो गुम हो गया था, राइट? तो सर बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत बड़े स्कूल होने वाले हैं। मेरा ये भी सवाल है, आपके पास कितना टाइम होगा? एनी अदर व्यूज इसी क्वेश्चन पे? और कोई अच्छा सर आपका नहीं, इनको तो बोली मैंने 5 सेकंड बोलेंगे, सब 5 से ज्यादा बोलता ही नहीं। अगर प्राचार्य हर समिति में मेंबर होगा तो प्राचार्य के पास बहुत कार्य होंगे। तो पहले कमेटी डिसीजन लेगी, अगर डिसीजन पर कोई डिस्कस नहीं करता तो प्राचार्य को डिसीजन लेगा। ओके, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी सैयद साहब। ये सर ने जो बात की है उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे प्राचार्य जो है वो डिसीजन लेगा, जो मैं चाह रहा था एक उदाहरण भी दिया जाए। जैसे मान लो सांस्कृतिक समिति ने एक ऐसा गाना सिलेक्ट कर लिया है जो वल्गर, अब समिति को अपना प्रस्तुतिकरण प्राचार्य को दिखाना होगा और उसमें क्या क्या सूचीबद्ध हुआ है कार्यक्रम वो बताना होगा। प्राचार्य निर्णय देगा, क्योंकि कल चल के कभी कोई बात होती है मीडिया में आती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है गिरना है। जी, कैन आई ऐड समथिंग? जी जी। और एजेंट्स उनके सामने प्रस्तुत करके उनका भी उसमें अनुमोदन लेंगे। अनुमोदन लेना चाहिए। So they will decide the sequence and maybe then send it to the प्राचार्य। हर डिसीजन में प्राचार्य को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक इसमें उदाहरण देना था, सॉरी बस। हम लोग, आप यहाँ पे सभी प्राचार्य हैं, अगर लेट्स से डीईओ हर डिसीजन में डीईओ को के पास आपको जाना पड़े तो फिर कैसा लगेगा? वो भी बोल सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि सारे सॉन्ग्स हम अप्रूव कर सकते हैं। आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बता सकते हो कि कौन सा गाना वल्गर है कौन सा नहीं। तो कमेटी की कैपेबिलिटी आपको बनानी है कि वो इतना सक्षम हो कि खुद डिसाइड कर पाए कि वो सारे काम तो पहले ही ओरिएंटेशन में हो जाना चाहिए, जरूरत नहीं है। So that committee should be capable enough that they can do without you. तो कौन किसी दिन कोई शेयर कर रहा था कि स्कूल लीडर ऐसे होने चाहिए कि वो स्कूल में ना भी हो तो स्कूल पूरा उन्हीं की तरह चलता रहे। ये आपका काम है, दैट इज ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। अगर आप सर उनके सर पे खड़े रहेंगे और हर डिसीजन में रहेंगे तो फिर उनको कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जब अगर आपके सर पे डीओ खड़े रहेंगे तो। मैडम आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आई अंडरस्टूड डेमोक्रेटिक डिसीजन है, लेकिन आपका रोल क्या होता है? लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो सर बोल रहे थे, मतलब कोई भी चीज में यदि रिजल्ट अप टू डेट है तो समिति ने सबसे पहले मीडिया शायद डीओ चाहे लीडरशिप चाहे वो प्राचार्य को पूछेगी संस्था के प्रमुख, और लीडर बाद में समिति आती है। अग्रीड सर। तो जैसे मैम ने कहा आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, दे शुड सेंड इट टू यू। रिस्पांसिबिलिटी तो बांटनी पड़ेगी। हाँ जी सर, रिस्पांसिबिलिटी और ओनरशिप भी बांटनी पड़ेगी। हाँ, ओके, एक दो और केसेस लेते हैं, मे बी लास्ट वाला लेते हैं। टीचर है एक स्कूल में जो कंसिस्टेंटली लेट आ रहे हैं बहुत स्कूल में बहुत काफी टाइम से। अब उनके साथ क्या करना है ये किसको डिसाइड करना चाहिए? अनुशासन समिति। ओके, कोई इसने अभी तक आंसर नहीं किया है। लेट्स डू अनदर वन। किसी ने अगर या एकेडमिक
यहाँ SLT नहीं करेगा। यदि टीचर्स विद्यालय में समय से नहीं पहुंचे हैं, SLT इसका डिसीजन नहीं। और दूसरी बात ये, ऐसे टीचर्स को सुधारने के उनका वेलकम किया जाए। ओके, तो वेलकम किया जाना चाहिए जब वो लेट आए, जब वो टाइम पे आए, नहीं जब लेट आए, जब लेट आए। ओके, निर्णय आपने कहा SLT के पास जाना चाहिए। ओके, हाँ जी। मैं जो ये समस्या है मैं इससे भुगती हूँ। जब मैं आसपास की हाई स्कूल नागौर में गया तो एक पंडित जी थे दुबे जी, वो 1 बजे के पहले 10:30 से विद्यालय लगता था, 1 बजे के पहले का भी नहीं। जब मैं गया तो उसमें एक परिसर एक शाला नहीं थी। प्राथमिक में थे श्रीनिवास अग्रवाल, वहाँ के हेडमास्टर थे। एक दिन उनको इतना भला बुरा कहा और कहा कि यहाँ से भाग जाओ और आना नहीं। मेरे को बड़ा बुरा लगा, उनकी उम्र बहुत अधिक थी। फिर ऐसा मौका आया कि मैंने सोचा कि इस पर बहुत इन्वॉल्व ना हूँ। 1 से 5 तक अलग खंड है, 6 से 8 है, 9-10 का मैं हूँ काहे को करूँ। पहला ऑर्डर आया एक परिसर एक साला का। अग्रवाल जी अगले दिन लेके रजिस्टर पहुंचे हैं, सर एक परिसर एक साला हो गया और इसका आप वो करिए। मैं इन द्विवेदी जी को मैं नहीं झेल सकता। मैंने कहा ठीक है। मैंने जोड़ा नाम और पंडित जी को बुलाया अकेले। पंडित जी को मैंने कहा कि पंडित जी, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, मैं आपको कोई ऑर्डर जारी करूँ या कुछ भला बुरा कहूँ। मैं उस दिन अग्रवाल जी ने कहा है, मेरे को बड़ा बुरा लगा और अब मेरे ऊपर निर्भरता आ गई है, तो अब मैं क्या करूँ। अग्रवाल जी ने द्विवेदी जी ने कहा कि सर अगले दिन से ये मौका नहीं आएगा, मैं समय से आ जाऊँ। और द्विवेदी जी अब रिटायर हो गए हैं, समय से आ। अगर हम उनसे शालीनता से उनकी परेशानियों को जान लें तो निश्चित तौर पर हम इससे पार पा सकते हैं। एक लीडर होके एक हमने बहुत छोटा बड़ा का बहुत वो नहीं है, एक हमारे टीम के सदस्य हैं। मेरी समस्या हल हो गई, बाकी के और लोग हैं, कुछ और हो सकता है इसका वो। लेकिन मेरा विशेष ध्यान गया था, SOP में लिखा है स्कूल में आने जाने का प्रबंधन, एक दूसरा परीक्षा प्रबंधन हेतु सीधी भूमिका या जिम्मेदारी SLT के सदस्य को ना दें। किताब में क्लियर लिखा है, अपन साथी क्लियर हो जाएं। ठीक। दूसरी बात जो ये बोला ना सर ने कि लेट आते हैं, उसके लिए है पर्सनल चेक इन लिखा है बुक में, प्राचार्य ही उनको पर्सनल मिलेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू अपना सॉल्व कर लेंगे। प्राचार्य या जैसे कि अगेन हो सकती है उसमें एकेडमिक कमिटी आपकी। सर आपकी जो मेन कमिटी है यहाँ पे एकेडमिक कमिटी है, जिसमें उप प्राचार्य प्राचार्य HM सारे हैं। तो वो भी अगर टीचर लेट आ रहे हैं तो उनके साथ विचार विमर्श करके काम किया जा सकता है। मैं हमारा टाइम थोड़ा कम है, मैं बस एक थॉट के साथ सबको छोड़ना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो हम चाहते हैं आए टीचर्स में ओनरशिप हमेशा एक चीज के साथ आता है, पावर। अगर पावर नहीं होता तो ओनरशिप नहीं आता है। अगर ऊपर से कोई आपको कठपुतली की तरह अगर रखेगा तो पावर नहीं होगा, तो ओनरशिप भी नहीं आएगा। ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद सम पावर। यू हैव टू बी मेक योर टीचर्स। देवेंद्र सर, एक लास्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि शायद इस पे भी काफी सबकी अलग अलग राय होंगी। समिति के सदस्यों को चुना कैसे जाना चाहिए, तो जो वहाँ पे शिक्षक होंगे उन्हें चुना कैसे जाएगा स्कूल में, इसके लिए हम अपने अपने ग्रुप में चर्चा करेंगे। फॉर कितना टाइम है? 2 मिनट्स चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, देन द सेशन करें। हाउ विल यू चूज योर टीम मेंबर्स? ये की फिजिकल एज की बात होती है, फिजिकल तो मेंटल एज क्या मतलब मैटर ही नहीं करती क्या? मतलब कई बार हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं वो हमसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं। आप सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स का कैंडिडेट आया, मतलब स्पोर्ट्स टीचर के लिए कैंडिडेट आया है, 20 साल का है, नेशनल खेला हुआ है, इंटरनेशनल खेला हुआ है। आपके पास एक 50 साल का एक सीनियर प्लेयर है
जो कि चेस खेला हुआ है या कैरम खेला हुआ है, आप किसको बनाएं? तो ये मैं सिर्फ क्वेश्चन पर छोड़ रहा हूँ, ये सीनियरिटी जूनियरिटी तो मुझे समझ नहीं आता। किताब में उत्तर दिया सर वरिष्ठ शिक्षक को 2 जगह बिल्कुल आप सेट करो। नीति में जितने सीनियर है उनको इसमें डाल दो, बाकी क्षमता वाले उठा लो ऊपर। अन्य कमेटियों में बुक में दिया है, जो 6 समितियां हैं उनमें वरिष्ठता का हल्का सा ध्यान रखें। इन 2 जगह तो वरिष्ठ लेना ही है। सारे कामों के लिए उप समितियां 13 उप समितियां हैं, उनमें आप उनको बनाइए, वो बनाइए क्या दिक्कत? 28 ये कोई प्रोटेस्ट कर सकता है उन 6 समितियों में, तो हमारा जो किया धरा सब बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास इंटरेस्टेड व्यक्ति है तो उसको भी उस समिति में रखिए। ये कहाँ लिखा है कि केवल एक शिक्षक रहेगा? ठीक है, उसको बना दीजिए और दूसरे शिक्षक को इंटरेस्टेड है और बहुत योग्य है उनको उसमें रख लीजिए। तो काम वो करते रहेंगे और ये देखते रहें, और भविष्य में उन्हें करना है। और बाकी 13 समितियां जो हैं उनमें तो अब पूरा इंटरेस्ट है। कीड़ा वाला पीटीआई बने, कीड़ा वाला कीड़ा वाला बनेगा, इसको स्काउट वाली बनेगा, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है जूनियर सीनियरिटी की। केवल 6 समितियों में समस्या है तो उसको एडजस्ट करके चलिए। थैंक यू।